بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ آج پھر میں چھپ کر مالکن اور مالکن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مالکن کے شوہر مالکن کے لیے گجرے لائے تھے۔ وہ بہت محبت سے مالکن کو پہنا رہے تھے۔ ڈھیر تحفے لائے تھے، مالکن کی پسند کے کھانے لائے تھے۔ میں حسرت سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی، کاش میری بھی مالکن کے شوہر جیسے کسی انسان سے شادی ہو جائے، مگر حسرتیں کہاں پوری ہوتی ہیں۔ اے نصیبت! مالکن نے مجھے دیکھ لیا۔ میں ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہو گئی کہ کہیں مالکن مجھے ڈانٹ دیں۔ اس طرح چھپ کر دیکھنے پر فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر رات سوچتی رہی، مالکن کتنی خوش نصیب ہیں۔ یہ شاید امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ بے دریغ اپنے چاہنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ہم ہیں دن رات محنت کر کے کماتے ہیں، پھر ضروریات پوری ہوتی ہیں مگر خواہشات وہیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان میں ذرا غرور نہ تھا۔ بہت میٹھا لہجہ تھا مالکن کا، اور رویہ بھی سب کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا۔ لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے مالکن کے شوہر سے محبت ہو گئی، جبکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن کبھی کبھی اس بات کا اظہار نہ کر سکی، نہ ہی آئندہ کروں گی۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی۔ صبح معمول کے مطابق فجر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں چلی گئی، کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ ایک دم سے مجھے یاد آیا، رات مالکن کے شوہر ان کے لیے کھانا لائے تھے، یقیناً وہ کھا لیتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا انتظار کیا، پھر صفائیاں شروع کر دی۔ صفائیاں وغیرہ کر کے مالکن ان کے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہی میری روز کی روٹین تھی، اور جب مالک کام پر چلے جاتے پھر کمرے سے نکل کر برتن دھوتی، مالکن کا کمرہ صاف کرتی۔ آج بھی جب مالک جانے کے بعد مالکن کا کمرہ صاف کرنے گئی، مالکن مجھے مسکرا کر بولنے لگی، میں تم ہمیں چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ میرا تو سانس بند ہونے لگا۔ پتہ نہیں مالکن کیا سوچ رہی ہوگی، میں ہی پاگل تھی جس طرح بھوکوں کی طرح دیکھنے لگ گئی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، مالکن دوبارہ بولنے لگی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پھر میں نے جواب دیا، مالکن بس ویسے ہی۔ پھر مالکن نے میری بات بیچ میں ٹوک کر کہنے لگی، اچھا چھوڑو، میں چاہتی ہوں تم میرے شوہر سے شادی کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاؤں گی، اچھے سے بولنا سکھاؤں گی۔ مالکن کی یہ بات سن کر پہلے تو میں پریشان ہوئی، انکار کر دیا، مالک نہیں مانیں گے، مگر مالکن کہنے لگی، یہ میرا کام ہے، ان کو منا لوں گی، تم اپنا بتاؤ کیا کرو گی میرے شوہر سے شادی؟ پھر سوچنے لگی کہ جب میں ان کے شوہر سے محبت کرتی ہوں پھر انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا، اسی لیے میں فوراً مان گئی۔ میری تو خواہشاں آسمانوں کو پہنچ گئیں۔ ابھی رات ہی تو مجھے اس چیز کی حسرت ہوئی تھی، صبح ہی اس انسان کو میرے حق میں لکھ دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی، میری قسمت بدلنے والی تھی، زندگی بدلنے والی تھی، میرا اسٹیٹس سب کچھ بدلنے والا تھا۔ لوگ میری بھی ویسے ہی عزت کرتے، لیکن سب کچھ لیے مجھے خود محنت کرنی تھی۔ اس روز مالکن کے پاس جاتی اور وہ مجھے اچھے سے تمیز سے بات کرنا سکھانے لگی، پھر آئے روز مجھے اچھے اور نئے نئے کپڑے لا کر دیتی، ان کو پہننے اور اوڑھنے کا طریقہ سکھاتی، فیشن سکھاتی۔ اسے یہ سب پوچھ سکتی تھی، کیونکہ جو مہربانی وہ مجھ پر کر رہی تھی میرے لیے یہی کافی تھا۔ ایسے روز مالکن مجھ پر اتنی محنت کرتی، وہ جیسے جیسے سکھاتی، جلدی ہی نہ صحیح مگر بھی ضرور کر لیتی۔ یوں صحیح وقت گزرے جا رہا تھا۔ مالکن نے اپنے شوہر کو بھی شادی کے لیے منا لیا تھا۔ پہلے تو مالک نے انکار کرتے رہے، لیکن میرے لیے تم کافی ہو، میں کیوں دوسری شادی کروں گا؟ لیکن مالکن کہنے لگی، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اس کو بھی پورا حق ہے کھل کر زندگی گزارنے کا۔ وہ بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ کر انہیں شادی کے لیے منا لیا۔ چند دنوں بعد مالکن نے ہماری شادی کروا دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، میری خدمتیں کرتی، میری حیثیت اور مقام سب کچھ بدل گیا تھا، سب کچھ غلط چل رہا تھا۔ لیکن مجھے کبھار شک ہو تو مالک اور مالکن کی بحث ہوئے کرتی، لیکن جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف جاتی خاموشی چھا جاتی، پھر میں خاموشی سے واپس آ جاتی۔ ایسے ہی ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی، وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے چکر لگائے ساتھ کہہ رہی تھی، آپ ٹینشن نہ لیں، مال آپ کو پہنچ جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی میری طرف پلٹی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور جب میں نے پوچھا تو کہتی، ایک دوست کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسے کہہ رہی تھی پیسے پہنچ جائیں گے۔ ویسے مجھے ان کی بات پر یقین آیا، لیکن پھر بھی خاموشی ہو گئی، کمرے واپس آ گئی۔
मुझे लगा शायद वो शौहर को धोखा दे रही हूँ, लेकिन इन दोनों में तो बहुत प्यार है, हो सकता है मेरा ही वहम हो। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही हमारे दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मालकन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहती कि तुम्हें तैयार करवाऊंगी, तुम्हारी तो शक्ल ही अजीब हुई पड़ी है। मैं खुश हो गई, मैंने कभी ज़िंदगी में चौंचले पूरे ना किए। मैं पार्लर वाले के सामने जाकर बैठ गई। मुझे देख रही एकदम खड़ी हो गई। मालकन से कहने लगी, ये तो पहले ही बहुत खूबसूरत है, इसे क्या सजाऊं भला, लेकिन आपसे ज़रूर कहूँगी मासूम सी है, खुदा पर इस पर जुल्म ना करे। इसकी बात सुनते ही मैं डर गई, कैसा जुल्म है। फौरन मालकिन के पास गई, जाकर पूछने लगी, क्या कह रही है, कौन से जुल्म करवाने लगी हैं आप मुझ पर। तो मालकिन मुझे कहने लगी, उसको तो फजूल बोलने की आदत है, तुम टेंशन ना लो, एकदम गजब लगोगी तैयार होकर, इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें तैयार करवा कर तुम्हारे शौहर पर जुल्म ना करना, और तुम अपनी ज़ुबान बंद करके काम कर। मालकिन की बात सुनकर मुझे तसल्ली ना हुई, लेकिन मैं खामोश हो गई। पार्लर वाली के पास गई, उसे पूछने लगी, तुम बताओ क्या कहना चाही थी। इसने ऐसी बात बताई कि मैं आसान खड़ा हो गए, डर के मारे भागने लगी। लेकिन मालकिन ने मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। शुरू से ही हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी अम्मी अब्बा थोड़ी गंदी में रंगत में रखते थे, जबकि मेरा रंग बहुत सफ़ेद और खिला खिला सा था। देखने वाला कभी कभी ये सोच ही नहीं सकता था मैं ऐसे घराने में हूँ। मेरे नैन नक्श भी अम्मा अब्बा से बहुत मुख्तलिफ थे। मोहल्ले वाले तो अमूमन कहते थे तुम इनकी बेटी ही नहीं लगती, यूँ लगता है कि इसे चुरा कर लाए हैं। और मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती। मेरे अब्बा और अम्मा दोनों शुगर के मरीज थे, लेकिन फिर भी अब्बा ने मुझे 10 जमातें पढ़ाई थी। मेरे अब्बा सब्ज़ी का ठेला लगाते, मेरी अम्मा लोग के घर में काम करती। जब इन दोनों को इस तरह शदीद गर्मी और शदीद सर्दी मेहनत करते हुए देखती तो मुझे एहसास होता माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, मुझे इनकी मेहनत का सिला देना चाहिए। इसलिए मैं दिल लगा कर पढ़ती। लोग मुझे बातें भी सुनाते, कितनी गर्मी में तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, अगर कुछ हो जाए तो माँ बेटी अकेली रह जाओगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ख्वाब आता है। जैसे ही मेरे मैट्रिक के इम्तहान होने लगे, जिससे 1.5 हफ्ता पहले वालिद का इंतकाल हो गया, लोगों का कहा सच हो गया। मुझे सब में कहीं ना कहीं अपनी ही गलती नज़र आई थी। मैं अब्बा मेरी पढ़ाई का बोझ ना लेते तो आज ये सब ना होता। अब्बा की वफ़ात ने मुझे और अम्मा को तोड़ के रख दिया था। मगर फिर भी मैं 10वीं के इम्तहान देने जाती अब्बा का ख्वाब पूरा कर सकूं। अम्मा की नौकरी भी छूट गई, घर पाके होने लगे। इसीलिए 10वीं के इम्तहान के बाद आगे की पढ़ाई का फैसला तय करने के बाद मैं अम्मा का पेशा इख्तियार कर गया। लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मारी मारी घरों में काम करती, इसी तरह अम्मी की इज्जत गुजारी। फिर उसके बाद मैंने अम्मा का दोबारा काम न करने दिया, बल्कि खुद काम करती। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक वक्त 2 वक्त की रोटी खा रही थी, यही काफ़ी था हमारे लिए। एक दिन जो ही मैं इसीलिए बैठे हुए कहने लगी, औरत को जानती है बहुत अमीर है, उसका घर भी बहुत बड़ा है, उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो जाकर अच्छी तनख्वाह भी होगी। इसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उस औरत का एड्रेस लेकर उसके घर आई, अपनी अम्मा को बताया तो वो कहने लगी, जहाँ तुझे आसानी लगे। फिर अगले दिन मैं उस औरत के घर गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई। और उसे क्या कहने लगी, मुझे काम पर रख लो। उसको मुझ पर रहम आ गया, तो उसने मुझे काम पर रख लिया। रोज़ सुबह 10 बजे काम कर जाती और 5 बजे वापस आती, और टोटल 3 बंगला में इस वक्त मैं काम कर रही थी। बारी बारी सबके घर जाती, काम के दौरान वहाँ इनकी कीमती चीज़ें भी उठा लेती। मेरे इज्जत से दाना पानी लिया था, जिस तरह चोरियाँ करने लगी, फिर खुद के साथ मेरी इज्जत भी गंवाएगी, लेकिन यही करके टाल देती। अम्मा तुम क्या जानो अमीर होने की शिश्के, अम्मा बस अफसोस से चाहे रहती रहती। फिर रूटीन बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी। एक दिन वो भी मुझे सालिम समाज में तनहा छोड़ दी। अम्मा के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। घर आती तो मैं घर आने को दिल ही नहीं चाहते, इसलिए जिस बंगले में मैं काम करती इन सब की मालकिन से दरख्वास्त करने लगी, मुझे यहाँ का रहने दें, मैं इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी इनमें से कोई एक तो मान ही जाएगी, और वही हुआ। जिस औरत का मुझे मेरी दोस्त ने बताया था, वही औरत मान गई, मुझे घर में रखने लगी। इन्हीं के घरों में रहा करती, सारे काम करती, उनके खाना बनाती, नाश्ता सफाइयाँ, बर्तन रोटियाँ बना के देना, सबके सब काम मेरे पर थे। मालकिन बहुत अच्छी थी, वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करती थी। उनकी जितनी अच्छाई करो कम थी। मेरी मालकिन और उनके शौहर में बेपनाह प्यार था। रोज़ घूमने जाते, डिनर करते, मालिक रोज़ इन्हें नई नई तोहफ़े ला कर देते। वो बहुत खुश होती, उनको खुश देखकर मैं भी खुश होती। शुरू शुरू में तो ये सब चलता रहा, मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जलन पैदा होने लगी। मालकिन का शौहर से इतना प्यार करता,
रोज़ नई महंगी महंगी चीज़ ला कर देता हूँ मालकिन। इन सबको घर में देख देख कर मेरा भी दिल चाहता है मेरे पास भी ये सब हो। इन सब में ऐसा करें, मुझे भी कीमती चीज़ें चुरा लेती, अमरे कमरे में जाकर बैग में रख लेती, ताकि अगर कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत माल तो हो मेरे पास। मेरा मानना था क्योंकि घर में बेशुमार चीज़ें थी, अगर कोई इनमें से एक आधी दिन ले भी लूँ तो इन्हें क्या पता चलेगा, पर कौन सा कोई शान में कमी आ जाएगी। इसी तरह इधर ज़िंदगी गुजार रही थी जब एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज़ यानी इनके शौहर पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह से हासिल करना था, लेकिन मुझे मालिक या मालकिन की जिद करने की हिम्मत न हुई, इसलिए खामोश रहती। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब मालकिन ने मेरी शादी अपने शौहर से करवा दी। फिर वो मेरी खूब खिदमतें करती, मेरा ख्याल रखती, मुझे कहती तो मेरी बहनों की तरह हो, उनकी बात मान लेती। मेरी हैसियत बदल गई थी, मुकाम बदल गया था, मैं बहुत खुश थी। इतनी खुश कि ये महसूस भी ना कर सकी घर में क्या चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है। एक दिन मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही मालकिन से कहने लगी, इस पर जुल्म ना करना। मैं डर गई थी, कैसे जुल्म, जो बताया था वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसने बताया, ये लोग तुम्हें तैयार करवा कर यहाँ से आगे भेजेंगे अपने कोठे पर, इनका मामूल का काम है। इसकी बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लग गई, वहाँ से भागने ही लगी थी। मालकिन ने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर जुल्म करने लगी, कहने लगी, इतनी मेहनत से यहाँ लाई हो तुझे, तेरा स्टेटस सब कुछ बदला सिर्फ इसीलिए कि तू आगे जाकर मेरा काम करे, लेकिन तुम तो यहाँ से फरार होने लगी। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। तुझ में इतनी हिम्मत, तू यहाँ मेरे खिलाफ बोलेगी। इतनी हमदर्दियाँ जाग रही हैं। फिर अपने शोहर को बुलाकर कहती, तेरी चुड़िए को पर लग गए हैं, मेरा ख्याल है इन पर को कट जाना चाहिए, हमारे लिए बेहतर होगा। वो आगे से कहने लगा। मैं बेयकीनी से दोनों को देख रही थी। वो बताने लगी, तुझे क्या लगा हम दोनों मियाँ बीवी हैं? अरे पागल, हम जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं, आगे उसको कोठे पर भेज देते हैं ताकि तुम लोग की भी जिंदगियाँ बन जाए, हमारा भी काम हो जाए। इनकी बातें सुनकर मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ यकीन नहीं कर पा रही थी किस कदर चालाकी से इन दोनों ने मुझ पर खड़ा डाला था। मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। इतनी बदहवास हो गई, मगर बस इतना कहा, वो निकाह। और ये सुनते ही वो दोनों हंसने लगे, कहने लगे, वो भी झूठा था। अब यहाँ मजीद हर महीने नई लड़की आती है, तो क्या इन सबसे निकाह करने बैठ जाओ? हम दोनों पार्टनरशिप हैं, काम कर रहे हैं और सबको फंसाते हैं। अपनी बेवकूफ़ी पर अमीर होने के लालच में कहाँ फंस गई थी। फिर मैं बेआवाज़ वहीं खड़े रहती रही। वो पार्लर वाली भी उनके कहर का निशाना बन गई। मेरी वजह से वो औरतें हम दोनों को घसीट कर बाहर ले गई। गाड़ी में धमका मैं रोती रही, इल्तिजा करती रही, मगर दोनों बहर बने रहे। गाड़ी में बैठते ही वो पार्लर वाली ऐसा महसूस होता था किसी गहरे सदमे में जा पहुंची हो। फिर वो गाड़ी सीधा अपनी मंजिल पर जाकर रुकी। एक खूबसूरत सा बंगला था जिसके ऊपर रंगीन लाइट्स थी। बाहर से देखने में वो जितना खूबसूरत था, अंदर इतने ही भयानक काम होते थे। इधर अब हमारी टांगें खौफ से कांप रही थी। हमें अंदर ले गए। अंदर जाते ही एक औरत को बुलाकर कहा, आज आज महफिल सजाई जाए, आज तो तुम लोग में 2 लोगों का इजाफा हो गया है। वो आगे से हंसने लगी, हमें कमरे में ले गई। हम नहीं जानते थे बाहर क्या हो रहा है, मगर किसी गाने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो पार्लर वाली जो मेरे साथ बैठी थी, मैंने इसे हिलाने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। खामोशी से बैठी हुई थी, खाली खाली निगाहों से कभी मुझे देखती, कभी कमरे को देखती। फिर कहने लगी, आज से पूरे 1 साल पहले मैंने यहाँ अपनी दोस्त को बेचा था, पैसों के लालच में। वो यतीम थी, बहुत रो रही थी, मुझसे कह रही थी, अगर बाद मेरी पसंद नहीं आई तो माफ़ कर दो। घर में मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। मगर मैं बेहिस बनी रही। चंद पैसों की खातिर मैंने उसे बेच दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वफ़ात पा गई। वो मेरी दोस्त की ही बद्दुआ लगी है, जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे इसके साथ बुरा करने का बदला ले रहा है। पार्लर वाली की लड़की की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई दोस्त ऐसी भी हो सकती है? वैसे मेरी दोस्त ने मेरे साथ यही किया था, जानते हुए भी। औरत गलत कामों में मदहोश है, फिर भी उसने मुझे इधर काम करने के लिए भेजा। मेरी आंखों से आंसू शायद अब खुश्क न होते, ऐसी दलदल में फंस चुकी थी कि अब यहाँ से बाहर रहना नामुमकिन था। वो पार्लर वाली भी रो रही थी। साथ अगले दिन जब हमें कमरे से बाहर निकाला गया, संदूक के पास आए तो कोठे वाले मुझे देख कर एकदम से डरने लगे। इस वक्त खौफ के आलम में बस इतना ही कह सकी, मेरी जान बचा लें। एकदम से दर दर चमगाइयाँ होने लगी।
अगर बड़े साहब को पता चली तो हमें जान से मार देते। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सवालिया नज़र से सबको देख रही थी। तो वो कहने लगे, तुम वही हो ना बड़े साहब की बेटी। मैं नफी में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो वो कहने लगे, तुम इन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए तुम्हें, तो फिक्र ना करो, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। ये बात सुनते ही मेरी रूह फना होने लगी। न जाने किसके पास मुझे किस्मत ले जाएगी। मैं इनकार करने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी, किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरी अम्मा अब्बा तो कब के फौत हो गई हैं। मगर किसी ने मेरी बात का भरोसा ना किया। सब वहाँ से चले गए। सारे दिन इसी परेशानी में गुजरा। सब मुझे अजीब प्रोटोकॉल देने लगे। मेरे आगे पीछे घूमते, बस जानता था सोचती रही मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अम्मा पापा के जाने के बाद मुझे ये सब बर्दाश्त करना था। काश वो लोग इस दुनिया से ना जाते, मगर अब मुझे अपनी जंग तन्हा लड़नी थी। उनका रवैया, उनकी हरकतों से मुझे डर लग रहा था। ये सब लोग मुझे फंसा रहे थे। रात भर मुझे सारी रात मुझ पर भारी थी। मैं ये सोच कर रहती हुई कल सुबह एक नए घर में भेज दिया जाएगा। मुझे वहाँ वो लोग न जाने कैसे होंगे, मेरे साथ कैसे सलूक करेंगे और क्या कहेंगे, कहीं आगे तो नहीं बेच रहे। बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। वो लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर जाकर छोड़ आए। इनको कहती रही इन्हें नहीं जानती, मगर अपनी जान अजीब थी, इसलिए बिना सोचे समझे किसी की बेटी किसी को सौंप कर आए। वहाँ जब मैं गई तो बाहर एक नाम लिखा हुआ था, ज़हीर मेंशन। इतना समझ गई थी ये जिसका घर है वो कोई ज़हीर नामी बंदा है, लेकिन इसकी बेटी कैसी हो सकती हूँ। ये सब तो झूठ था। मैं अंदर गई तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। फिर इस आदमी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। कहने लगा, बेटी तुम आ गई हो। मैंने जगह जगह तलाशी ली, मगर तुम न जाने कहाँ चली गई थी। इनकी बात सुनकर मैं खामोश रही। वो आगे से कहने लगे, मैं जानता हूँ नाराज़ हो बाबा से, मगर मैं मना लूँगा अपनी बेटी को। अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज कितने अरसे बाद किसी ने बेटी कहा था। मुझे अब्बा वाला प्यार जताया। मैं इनके गले लगकर डालने लगी। वो मुझे खामोश करवाते रहे। ये कहकर अब अपने अब्बा पर भरोसा रखो, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ ये सब मुखलिस बंदा है। मुझे अपनी बेटी समझकर ढेर प्यार देता, मेरा ख्याल रखता, फरमाइश पूरी करता। मगर मेरे दिल में कहीं खौफ सा था, अगर अब यहाँ से भाग गई तो लोग मुझ पर तरह तरह की बातें करेंगे। एक दिन मैंने एक फ्रेम देखा जिसमें अंकल है, उनके साथ उनकी बेटी थी जो मेरे जैसी थी। तो लड़की एक शक्ल की कैसी हो सकती हैं। ये सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। उस रात मुझे बाहर से शोर शराबा की आवाज़ आने लगी। जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मालूम हुआ जिस घर की असल बेटी थी वो वापस आ गई है। उसे देखकर कितनी देर अपनी जगह पर जम गई। वह सब सच था। इनकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मेरे दिल में डर आने लगा, कहीं ये लोग मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। यह इनका साथी समझ गया, इसलिए मुझे फ़ौरन चादर ओढ़कर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। भागकर मैं वापस इसी कोठे पर आ गई। मुझे देखकर वो लोग कहने लगे, क्यों नहीं हुआ तुम्हारा बाप, हमें जान से मार देगा, चली जाओ तुम वापस। फिर मैंने इन्हें बताया जिस आदमी के घर आप लोग मुझे बेटी बनाकर छोड़ आए थे, उसकी अपनी सगी बेटी आ गई है। आप लोग को यकीन हो गया होगा मैं वाकई उसकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। पुराने वाले कमरे में जाकर कुंडी लगाकर बैठ गई। अंदर कहीं मेरा दिल नहीं लग रहा था। तुम्हारे बाप जैसी नीमत छिन जाने पर मैं घंटों रहती रही। वह कई लोग दरवाज़ा खटखटाए थे, मगर मैं बहरी बनी इस आदमी की बेटी की ये मोहब्बत का सोच कर रहती रही। फिर मजीद चंद घंटों बाद जज्बात पर काबू पाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। लड़कियां मुझे देखकर बस यही कही जा रही थी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, कितने दिन सुकून से गुजार कर आई हो। मगर मैं खामोश रहती। पूरे 2 दिन बाद कोठे पर पुलिस की छापा पड़ा। पुलिस सबको बारी बारी ले जाने लगी। सब एक दूसरे कान में घुस घुस कर कह रहे थे, ये सब इस लड़की ने करवाया है। सब मुझे मशकूक नज़र से देख रहे थे, मगर वहाँ बच्ची थी और पुलिस भी जा चुकी थी सब लेकर। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर फिर वही अल्फाज आए, तुम मेरी बेटी हो, कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढा मगर तुम कहीं ना मिली। अब की बार खाली नज़र से उन्हें देख गई थी। वो कहने लगे, हाँ यही सच है, तुम दोनों जुड़वा बहनें थी। हमने एक घर में एक मुलाजमा रख ली। वो मुलाजमा तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती थी। उस पर अंधा भरोसा करके तुम दोनों को उनके सफेद करके काम पर चला जाता। इसने फ़ायदा उठाया और तुम्हें अगवा करके यहाँ से भागी। इसके बाद मैंने इसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं ना मिली। इसी सब में तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से चली गई। पहले बेटी के ना मिलने का दुख और फिर महबूब बीवी के बिछड़ जाने का गम। मुझे तो किस सूरत सब्र आने को न था, मगर फिर मैंने इसके लिए खुद में सब्र पैदा किया।
اس کی اچھی پرورش کی، اعلیٰ تعلیم دی، پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن جب ایک دن یہ بھی غائب ہو گئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، ہر ہاسٹل تعلمان چیک کیے، جگہ جگہ دیکھا مگر کہیں نہ ملی۔ جس دن پہلی بار تم یہاں آئی تھی تب ہی پہچان گیا تھا یہ میری بڑی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کی چال ڈھال ایسی نہ تھی۔ اس لیے سب تمہیں گلے لگا کر تمہیں بتایا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم نہ ملی، لیکن لگا کہ یہ سب اس کی محبت میں بول رہا ہوں، اسی لیے تمہیں جان گیا کہ تم اس کوٹھے پر واپس آئی ہوگی، اس لیے یہاں آیا ہوں، تمہیں وہاں سے بچا کر یہاں لا کر ساری سچائی بتایا ہوں۔ تم یقین کر سکو تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، یہاں سے دوبارہ بھاگنے کی غلطی نہ کر سکو بیٹا، تمہارا ہی گھر ہے، اس بات کو جلد ہی مان لو جو غلطیاں ہم سے ہوئی، ان سب کے لیے بہت شرمندہ ہیں۔ ابا کی بات سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں بہت خوش تھی، مجھے دوبارہ باپ جیسی نعمت مل گئی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر باپ کے سینے سے لگ گئی اور خود پر ہوئی زیادتی، جتنا میں روتی تھی یہ سب سہ کر، مگر قسمت میں جو تھا وہ ہو چکا تھا، اب کوئی نہیں تھا۔ میں ہنسی خوشی اب اور اپنی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، یہاں میری ہر خوشی تمام ہوئی۔